Good morning all and welcome to Ahmedabad Management Association. The open forum program of AMA, which is one of the most popular feature of AMA, because in the open forum we have all the experts of different domains who share their views with us. It is an opportunity which other organization doesn't provide just like that. And over a period of time, we have been expanding the horizon of the topics of the open forum. In fact, open forum has become such a popular thing that so many times the people, industry people, IAS officers, some of the I know well, they themselves say कि भाई मैं योगा का ट्रेनिंग करके आया हूँ, IPA का ट्रेनिंग के लेके आया हूँ, I will have to share my views. So this is the importance of open forum, and in continuation with that, we have one more such interesting topic, what is called safety and beyond. Now that is important. Safety and beyond the mandate. It is not straitjacketed. It is not confined to a particular norms, typical side of the safety. I was talking to him, Mr. Ravi. It goes beyond that, and because safety is something which we can never neglect, and we have got one of the best person for that. In that. By the way, I am Padmin Buch. I am a chairman of Extension Services Committee of Ahmedabad Management Association and also member of Governing Council of AMA. As you know, AMA has a tradition that all invited speakers like Mr. Ravi is here. We senior members of a committee or chairman, we always here there to coordinate, introduce and coordinate the entire show. That is something which is always a pleasure for us. So once again, welcome to all of you. It's my pleasant duty to introduce Mr. Ravi Thakkar. Mr. Ravi Thakkar is the Senior Manager Trainings at the Lifeline Foundation, Vadodara, and has been associated with the organization since 2012. Beginning his journey in ambulance operations, he soon found his passion in the first aid training, which became his driving force. Now, this is a key word, passion. Somebody who has a passion, then he or she can only do such kind of thing, and we need more such kind of people. Over the years, he has conducted first aid and CPR training programs across India. CPR, you know, you must be knowing, coronary pulmonary respiration. Am I right? Howdy, Gojo. Thank you. CPR training programs across India, catering to industrial personnel, housing societies, law enforcement agencies, teachers, and students, practically covering everybody. In addition to the first aid, Mr. Thakkar has delivered training sessions on occupational health, safety, ergonomics, and vehicle ergonomics, training industrial workers, drivers, and officials on a safer policies. So much necessary, and again expanding the coverage of that. He has also trained police officials, home guards, and army police officers personnel in critical trauma care skills, including lifting and shifting road accident victims. बोलते हैं कि golden hour. If you are there and the person is injured in the road, that is a golden hour. Within if that half an hour, 1 hour, if you take care of it, that person has all the chances of surviving. And that's what exactly what he is talking about. Okay. Road accident victims, helmet removal and MILS technique with the log roll. Mr. Thakkar has trained over 23,000 participants across the India, helping communities stay safe and better prepared for the emergency. We must applaud him that he is doing such a fantastic work. Let's clap him to welcome. And clap again because I want to welcome you on behalf of all of us and AMA. I told him he is not, he is very much familiar with AMA. He has been regular at AMA. So, but we discuss as you know, we always have what we call AMA time. Oh, so we start on time. 6:30 to 7:30 will be approximate time for his presentation and talk. About 15 minutes we will keep for question answers. 7:45 we will like to finish, and then of course you can interact with him after the 7:45. Thank you. Yeah, sir. So, नमस्कार, मेरा नाम रवि ठक्कर है। मैं लाइफलाइन फाउंडेशन के साथ 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआती दौर में 5 से 7 मिनट के लिए हम लोग बेसिक लाइफलाइन फाउंडेशन क्या काम करता है भारत देश के अंदर, क्या मुहिम के ऊपर उन्होंने काम किया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी गुजराती।
इंग्लिश गुड, ओके फाइन. सो लाइफलाइन ने बेसिकली जो काम किया उसके बारे में थोड़ी बहुत हम स्लाइड्स देखेंगे एंड देन विल शिफ्ट टू द टॉपिक. So, founders, Dr. Subrata Das is a Padma Shri awardee. Ms. Sushmita Das, she is the co-founder. इन्होंने लाइफलाइन फाउंडेशन की 2002 में शुरुआत की थी. इसके पीछे ये एक एनजीओ जहाँ शुरू होता है, तो एनजीओ शुरू किया, उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि इसे क्यों शुरू किया गया. विल जस्ट सी अ स्मॉल वीडियो टू दैट. यहाँ कोई किसी को बचाने नहीं रुकता, सब तमाशा देखते हैं और आगे बढ़ते. कई हादसे आप जानते हो जिंदगी बदल देते हैं. हमारे साथ 99 में ऐसा ही कुछ हुआ था. उस रात 1:30 बजे हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. गाड़ी पेड़ के साथ जाके टकराई. गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका. एक डर सा लगने लगा और उसके साथ गुस्सा भी आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है. फाइनली 4.5 घंटे बाद एक दूध वाला वहां से जो जा रहा था वो रुका और उसने हमें हेल्प किया. हम 5:30 बजे फाइनली हॉस्पिटल पहुंचे. मेडिसिन में हमको बढ़ाया जाता है कि लाइफ इज प्रेशियस, और उस दिन शायद हमें हमारी जिंदगी का एक नया लक्ष्य मिला. हमने एक संस्था बनाई, लाइफलाइन फाउंडेशन. एक हेल्पलाइन नंबर बोर्ड पे लगाया हाईवेज पर. एक कंट्रोल रूम बनाया, इंडिया का फर्स्ट हाईवे एक्सीडेंट कंट्रोल रूम. लोग कॉल करते, नजदीक का एम्बुलेंस हम पहुंचाते, पेशेंट को पिकअप करते, हॉस्पिटल पहुंचाते. पहला विक्टिम जिनको हमने बचाया, करीबन 6-7 महीना हो गए होंगे, वो जब हमें थैंक यू देने आए तब एक खुशी का एक एहसास हुआ पूरी टीम को कि हमने किसी की जान बचाई है. उस रात को उस दूध वाले ने जो हमारी जिंदगी में किरदार निभाया, हम यही चाहते हैं कि हम हर एक्सीडेंट विक्टिम के लाइफ में उसी किरदार निभाएं. जब कोई एक हादसे से सबक ले अनजान जिंदगियां बचाने में जुट जाए तो इससे बड़ी केयर की मिसाल क्या होगी. सुब्रतो दास जैसे केयर हीरोज से इंस्पायर होकर हम अपने रोज के काम में केयर को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. थैंक यू. सो एज मैंशनड, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत देश का सबसे पहला एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर लाइफलाइन फाउंडेशन ने 2002 में इसकी शुरुआत की. इट वाज स्टार्टेड इन 2002 विथ नेशनल हाईवे, लेटर एक्सपांडेड टू स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज. इन सब जगहों पे आपने भी ये नंबर कभी ना कभी नेशनल एक्सप्रेसवेज से पास होते हुए देखा होगा, राइट. द नंबर हैज़ बीन चेंज टू 98796. रिमेनिंग लास्ट 5 डिजिट विल रिमेन सेम, है ना. ये 2014 दिसंबर तक ये पूरी सुविधाएं चालू थी. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों को कवर करते हुए 5000 से ज़्यादा किलोमीटर का हाईवे कवर किया गया. यहाँ आप जैसे देख सकते हैं 12,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स के अंदर इंटरवीन करते हुए कुल मिला के 15,000 से ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स की जान बचाई गई. एज राइटली मेंशन बाय बूथ सर, विद इन गोल्डन आवर, राइट. गोल्डन आवर का कंसेप्ट यही होता है कि जिस वक्त एक्सीडेंट होता है वहाँ से 1 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति की जान बचा ली जाए या उनको अस्पताल पहुँचा दिया जाए तो इनके जान बचने के चांसेस जो है ये बढ़ जाते हैं. 108 का टेक्निकल सेटअप लगाने के लिए राजस्थान, केरला, बिहार, पंजाब के लिए लाइफलाइन ने काम किया. बट द फर्स्ट पार्ट कम्स हियर इज श्री राजू रामलिंगम, जो कि सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक रह चुके हैं. उन्हें ये HRP, इट इज़ कॉल्ड HRP हाईवे रेस्क्यू प्रोजेक्ट, ये उन्हें बहुत पसंद आया. There was a table talk meeting with Shri Raju Ramalingam sir and Dr. Das and Ms. Sushmita Das. That table is the place where the idea of 108 got established, was discussed, and later Shri Raju sir ने इसे central government को propose किया. That's how we have this service in our country. बांग्लादेश, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ लाइफलाइन फाउंडेशन जुड़ा हुआ है उनकी कंट्री के अंदर प्री हॉस्पिटल केयर सर्विसेज को एस्टेब्लिश करने के लिए. बहुत सारी कॉरपोरेट्स के साथ हम जुड़े हैं. आगे इसके ऊपर एक स्लाइड है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा. 27,000 से कुल मिलाकर अक्रॉस द कंट्री 27,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को अब तक हम लोग ट्रेन कर चुके हैं. इसके अलावा CPR सिटी वडोदरा, जिस शहर से मैं आता हूँ, मैं फ़िलहाल इसी शहर से आता हूँ, बट एज ऑफ नाउ शिफ्टेड टू वडोदरा, एंड देयर वी आर ट्रेनिंग अ लेमैन. एक दूध वाले भैया से लेकर एक कॉलेज से के प्राध्यापक से लेकर हर किसी को हम ट्रेन करते हैं, इंक्लूडिंग द NITB. इट इज़ द
फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ गुजरात जिसका पूरा स्टाफ इट वाज ट्रेंड इन CPR एंड फर्स्ट एड। प्राइमरी ट्रॉमा केयर PTC, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा एक इंडोर्स एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है जो कि हम पूरे देश में आयुष प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करते हैं अक्रॉस द कंट्री। फ़िलहाल आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरी ऑलरेडी 2 टीम जो है वो भारत के अलग अलग कोनों में ये ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, लाइफलाइन को उनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकग्निशन मिले। स्टार्ट विथ यहाँ आप जो 4 फोटोज़ देख रहे हैं, वी टॉक अबाउट दिस। इट इज़ रेड एंड वाइट ब्रेवरी गोल्ड अवार्ड इन 2003। यहाँ आप जो देख रहे हैं, अगेन इट इज़ 4th नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड। आमिर खान, सुनील गावस्कर के साथ में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इट इज़ CNN IBN रिलायंस इंडस्ट्री रियल हीरो अवार्ड। डॉक्टर सुब्रतो दास को अप्रैल 2017 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने भारत देश के लिए जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो योगदान दिया, अगर आप ये देखते हैं आपको ख्याल है कहाँ का सेट है ये? KBC, राइट, गुड। आप बात करते रहिएगा, आगे आपको ही बात करनी है। KBC इज कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा एपिसोड 2017 के साल से ऐड किया गया टू इनवाइट एंड प्ले KBC विथ नेशनल लेवल चेंज मेकर्स। सो फर्स्ट सीजन के अंदर जो 4 इन्वाइटीज थे उसमें वन ऑफ देम वाज डॉक्टर सुब्रतो दास। दे वर इन्वाइटेड विथ अ सेलिब्रिटी, जहाँ पर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक्चुअली मिस्टर बच्चन वॉज क्वाइट क्यूरियस कि डॉक्टर साहब आपकी पूरी टीम CPR के बारे में बात करें, ये क्या है। वी गॉट अ चांस टू परफॉर्म एंड डेमोन्स्ट्रेट CPR हियर ऑन अ नेशनल टेलीविजन प्लेटफॉर्म। आप मिस्टर सुकांतो दास यहाँ पे CPR परफॉर्म करते हुए एंड मिस ईशा पोपट आर डिप्टी CEO, आप उन्हें देख सकते हैं। वी वर्क इन ऑल दिस फील्ड्स। क्या करते हैं हम? एम्बुलेंस सर्विसेज एज वेल एज इनके ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करते हैं। हमने अब तक ये सारी कंपनीज़ के साथ, बहुत सारी कंपनीज़ जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, इनके नाम आपने सुने हैं, तो इस तरह से इन्हें एम्बुलेंस की सुविधाएं आउटसोर्स की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। वी ट्रेन, आइदर वी ट्रेन और वी ऑलरेडी हैव ट्रेंड, ये सारे हमारे पार्टनर्स जहाँ पर इनके कंपनी में जहाँ पर भी फर्स्ट एड के रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम इम्पार्ट करते हैं। कमिंग टू द मेन पार्ट, जिसका एक डायरेक्ट सीधा ताल्लुक आज के ये सेशन के साथ है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट भारत देश का एक लौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ये चारों रिकग्निशन है। आप ज़्यादातर लोग कंपनीज फैक्ट्रीज में से है, आपको ख्याल होगा, ये पहले 2 जो है डेफिनेटली ख्याल होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ फॉर सेफ्टी ट्रेनिंग अंडर 111A सेक्शन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में, और यहाँ आप जो देख रहे हैं दैट इज़ फर्स्ट एड ट्रेनिंग, राइट। सो फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 के अंदर ये मेंशन्ड है कि आपके जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स है उसके 10% जो है इन्हें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको ट्रेन करवाना है जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मान्य संस्था है। सो हम डिश डिपार्टमेंट के द्वारा एक मान्य संस्था है। यहाँ आप तीसरा नंबर जो देख रहे हैं दैट इज़ DGMS, डायरेक्टर जनरल माइंस एंड सेफ्टी, मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये एक रिकग्निशन प्रोवाइड किया जाता है। ये रिकग्निशन जो है यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एड होता है 1 या 2 दिन का या 3 दिवसीय प्रोग्राम, माइंस के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ये लागू होता है। अगर इन्हें जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जॉब छोड़कर चेंज करना है, कुछ भी, इनका ये सर्टिफिकेट एक्टिव होना चाहिए, जो कि इनका 11 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद ही उनको ये सर्टिफिकेट इशू होता है। आप यहाँ जो लास्ट में देख रहे हैं, इट इज़ वी आर एन ITC, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। आप में से काफ़ी सारे फेमिलियर चेहरे हैं जिनको ट्रेनिंग के दौरान मैं मिला हूँगा। सो आप जानते हैं कि CPR जब आपको सिखाया जाता है तो CPR हमेशा हर 5 साल में इसकी गाइडलाइंस चेंज होती है, अपडेट होती है। तो ये अपडेटेड गाइडलाइंस मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए भी सिर्फ 2 साल का लाइसेंस मिलता है। इन 2 साल के बाद वापस से ये मुझे भी रिन्यू करना होता है। तो इस तरह से ये एक ITC के थ्रू रिन्यू होता है। सो वी आर सेल्फ इज एन ITC फॉर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड दैट्स हाउ वी ट्रेन एवरीवन into updated guidelines of BLS. It is called Basic Life Support also. आज एक हल्का सा छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा बिफोर वी लाइक लिटरली जंप ऑन टू द फ्लोर। हम सेक्शन 45(3) एंड 111A में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है
उसके ऊपर जस्ट 1 मिनट बात करते हैं, जहाँ पर 45(3) बात करता है कि फर्स्ट एड बॉक्स आपके कंपनी या फैक्ट्री में जो होता है, ये हमेशा ऐसे एक व्यक्ति के चार्ज में होना चाहिए जो एक सर्टिफिकेट होल्ड करता हो, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकग्नाइज्ड हो। एंड 111 ये क्या कहता है कि हर जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, इन्हें फैक्ट्री या कंपनी के प्रेमाइसिस के अंदर ट्रेन होने के एज वेल एज, अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो बाहर जाके, मतलब कंपनी उसके लिए खर्चा करेगी और उसे जाकर सेफ्टी के अंदर ट्रेनिंग लेने की पूरी यहाँ पर उसको स्वतंत्रता है। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में मैं आपसे पूछना चाहूँगा एग्जैक्टली अच्छा, इसका जस्ट एक छोटी सी मतलब 2012 से मैं काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि हमारे सेफ्टी इंजीनियर्स या EHS डिपार्टमेंट के दोस्त फ़ोन करते हैं कि रवि सर एक प्रॉब्लम हो गई है, सेफ्टी ऑडिटर ने मना किया है कि ये 111A वाले सर्टिफिकेट है, ये फर्स्ट एड के लिए काउंट नहीं होते, तो एक फटाफट सेफ्टी का फर्स्ट एड का ट्रेनिंग करना पड़ेगा सर, डेट दे दीजिए। सो दैट इज़ द पॉइंट हियर कि इसे समझना ज़रूरी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। बट इसके अलावा और एक चीज़ है कि इन दोनों को अलग क्यों रखा गया है, आपको क्या लगता है? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए 7:30 को निपटाना है थोड़ा। सो एज ए लाइक हम जब भी ट्रेनिंग में जाते हैं, हम पार्टिसिपेंट से बातें करते हैं तो हम उनको बताते हैं हमेशा, देखिए हाँ होता है, ना होता है, नहीं मालूम। यस सर प्लीज़। सर ये इंडस्ट्रीज़ के लिए रहता है, ये जो कायदा है इट इज़ कमिंग अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, इट इज़ 1948 और इसके सेक्शंस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो जस्ट आई ब्रीफ यू। सो 111A सेफ्टी, इसका एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये क्यों होना चाहिए? इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग एक है कि किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या हादसा ना हो, उसकी तैयारी, राइट? किसी भी तरह का हादसा, दुर्घटना या कोई भी ऐसी चीज़ ये ना हो, इसके लिए 111A बनाया गया है, जहाँ पे सेफ्टी आप या मैं, हम जब घर से निकलते हैं और फैक्ट्री प्रेमाइसेस पर पहुँचते हैं, काम करते हैं, वापस पहुँचते हैं घर, इस पूरी जर्नी के दौरान कोई भी दुर्घटना या हादसा ना हो, उसके लिए, राइट? So safety always comes before, but still we know that बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जहाँ पर हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि हादसे, दुर्घटनाएं होते ही है। अब एक प्रेमाइसिस के अंदर किसी भी तरह का कोई मिसहैप हो जाता है, एक हादसा घट जाता है, इसके बाद में एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस आने का जो एवरेज टाइम है, इस दौरान वहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति, इसके पास इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट कम्स अंडर 45(3) बिकॉज फर्स्ट एड कम्स आफ्टर द इंसिडेंट हैड हैपेंड। आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ या ना? थोड़ा ज़ोर से। बहुत अच्छे। सो वी ऑलरेडी सी द नंबर्स। तो यहाँ पे लेट्स जंप टू द टॉपिक नेम। इट इज़ कॉल्ड safety training beyond the mandate. Safety training, I hope majority of, like मुझसे ज़्यादा आप लोगों को उसके बारे में जानकारी है, but beyond the mandate it's a huge responsibility. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये beyond the mandate? आपको क्या लगता है? ये आंकड़े देखने के बाद we all know that 111A is in existence, we all know 45(3) is in existence. Here the point is, इसके बावजूद भी ये आंकड़े एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑफिशियल डीजी फसली के रिकॉर्डेड नंबर्स है। हम सब साथ में मिलकर ये भी जानते हैं कि जो रिपोर्टेड नहीं है, ऐसे आंकड़े इससे कई गुना ज़्यादा होंगे। हाँ या ना? गुड। सो दैट इज़ वेयर अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बियॉन्ड द मैंडेट इज़ रिक्वायर्ड। सो बियॉन्ड द मैंडेट, मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ कि ये 15 टेक अवेज है, घर जाके इसको प्रैक्टिस करिएगा, एकदम सुपर सॉलिड हो जाएंगे, है ना? बट हियर आई एम हियर टू गिव यू एंड शेयर अ पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया जिसके बारे में हम बात करेंगे। बियॉन्ड द मैंडेट इज़ अ पर्सपेक्टिव। तो ये क्या है?
देखिए, उसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं, थोड़ा फटाफट खेलेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज, ऑल ऑफ यू हैव योर मोबाइल फोन, हाँ या ना? थोड़ा ज़ोर से, ऐसा नाभि से आवाज़ आना चाहिए, हाँ या ना? गुड, चलिए बहुत अच्छा. प्लीज़ अपने फ़ोन निकालिए. हमें सिर्फ इतना करना है कि आपको आपके रूटीन में डेली पल्स कितने हैं आइडिया है आपको? मतलब आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है, ये ख्याल है आपको, हाँ या ना? नहीं ख्याल, ओके, फाइन. लेट्स टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेक दिस. विल डू इट फॉर 30 सेकेंड्स. जस्ट अंडरस्टैंड क्या करना है. एक हाथ जिसमें चेक करना है उसे सामने रखें. जिस हाथ से चेक करना है उसकी 3 उंगली लीजिए. ये 3 उंगली के जो टेरवे होता है, टिप ऑफ द फिंगर्स, इसको मोड़ के साथ में ले आइए. और ये जो अंगूठे का बाहर का हड्डी है, इसे महसूस करते हुए थोड़ा सा नीचे उतरिए. जहाँ पर से हमारी कलाई मुड़ती है, अपने कांडू कहिए गुजराती में, राइट? सो कलाई जहाँ से मुड़ती है उस हिस्से में हम 3 फिंगर्स रखेंगे अपनी, और थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो हमें हमारी पल्स मिलनी शुरू हो जाएगी. हो रहा है, हाँ या ना? गुड, ओके. हमें ये करना है कि हमें सिर्फ 30 सेकेंड के लिए इसको काउंट करना है. मैं 3 गिनूंगा, हम गिनती शुरू करेंगे, राइट? ऑन द काउंट ऑफ 3 वी विल स्टार्ट. 1 2 3, वी स्टार्ट. स्टॉप. आज इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 गुना कर दीजिए, राइट? नाउ यू हैव द फिगर, राइट? जिनको अभी फिगर का कंफ्यूजन है वो 72 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 8वीं कक्षा के विज्ञान में हमको पढ़ाया जाता था कि एवरेज हार्ट बीट 72 होती है, राइट? सो लेट्स टेक द काउंट. कैलकुलेटर खोलें. कैलकुलेटर में सिर्फ इतना करना है कि आपको लिखना है आपके हार्ट बीट, जो भी आपको आंकड़ा मिला, इनटू 60. इसका मतलब 1 घंटे में, राइट? अब ये जो आंकड़ा हमको मिला, इनको हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है, इनटू 24, राइट? ये हमने जो किया ये हमें 1 दिन का मिला, राइट? अब इनटू 365, एक आंकड़ा मिल गया हमको जो हम बोल नहीं पा रहे, राइट? बस आखिरी काम करना है, इनटू योर एज. ઇન્ટુ ગુણાકાર કરવાનો છે તમારી પોતાની એજ જોડે, તમારી ઉંમર, हमारी एज जितनी है, राइट? एक आंकड़ा मिल गया हमको. अच्छा, उसे ध्यान से देख लीजिए. टेक 5 सेकेंड्स. यहां ध्यान दीजिए. ये वो आंकड़ा है जितनी बार हम सबका दिल हमारे खुद के लिए अब तक बीट कर रहा है, राइट? एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. वो अपना काम कर रहा है. हमने उसके लिए क्या किया अब तक? जब तक ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, हमने उसके लिए क्या किया, राइट? When we enter to a factory, many factories have this hoardings. It says retire healthy, है ना? काम करना, सेफ्टी इज ऑल इन प्लेस, बट रिटायर हेल्दी. सो मेरा सवाल आपसे, ये घर लेकर जाइएगा, होमवर्क है कि हमने हमारे इस दिल के लिए क्या किया. पॉइंट इज वी हैव बीन लकी सो फार टू बी सेफ, बट नाउ इट इज द टाइम टू चूज टू बी सेफ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है. नाउ नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स थोड़ा आप सबका सहयोग और सहकार चाहिएगा, है ना? तो इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं. आगे जो लिखा हुआ है, मैं आपको अब जो समझाने जा रहा हूँ वो है बियॉन्ड द मैंडेट. ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, कोई भी रूल के अंदर लिखा नहीं है
कि ये सेफ्टी में आपको कंपलसरी पढ़ना है और पढ़ाना है. दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ पार्ट ऑफ बियॉन्ड द मैंडेट, राइट. चलिए, सो समझते हैं एग्जैक्टली हमें क्या करना है. सो थोड़े वॉलंटियर्स चाहूँगा मैं, हो सके उतना जल्दी प्लीज़ स्टेज के नज़दीक आ जाए. 5-6 वॉलंटियर्स विल डू फॉर श्योर. ग्रेट. सो आप ऊपर नीचे जो एरिया चाहे आप यूज़ कर सकते हैं सर. हमें ये करना है कि हमारे सामने हमको जस्ट एक हल्का सा गेस करना है कि एक चीज़ मेरे सामने यहाँ पर पड़ी हुई है, मुझे उसे नीचे से ऊपर उठाना है. आप कैसे करेंगे मैं देखना चाहता हूँ. आप अपना बॉल पेन, आपका कागज़, आप ये बॉल पेन रख सकते हैं, आपने नीचे रखा है, आप कैसे उठाएंगे प्लीज़ अलग अलग जगह यूज़ करें. सर आप ऊपर आ जाए प्लीज़, 1-2 लोग ऊपर का जगह यूज़ करिए. आ जाइए, यूज दिस. यस 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 मैम, मैं यहाँ आ जाइए. यस, वुड यू बी कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू सिटिंग ऑन योर नीज? वुड दैट बी फाइन? श्योर, ठीक है. इसे नीचे रख दीजिए जो चीज़ आपके हाथ में है. ओके फाइन. तो आपको इसे उठाना है. अजय भाई ऑन द गो. आपको इसे उठाना है. मैं ये जानना देखना चाहता हूं कि आप इसे कैसे उठाएंगे. स्टार्ट. बहुत अच्छा, फाइन. हाउ अबाउट और कोई ट्राई करना चाहेगा? यस सर प्लीज. थैंक यू मैम. आप बैठिए, जस्ट 1 मिनट. आप बैठिए, दैट्स ओके जी. ओके जी, इसे कैसे उठाएंगे सर? ओके गुड फाइन, प्लीज बैठिए सर. हाउ अबाउट कि अगर मेरे सामने इसी की जगह पर जो चीज़ पड़ी है, ये एक बॉल पेन या एक कागज़ था, इतनी हल्के से हमने आराम से झुक कर ले लिया, बट इसी की जगह पर 3-4 केजी का ये बुकलेट वगैरह ऐसी सारी चीज़ें पड़ी होती, तो हम इसको कैसे उठाते? दोनों हाथों से. आप ट्राई करना चाहेंगे फिर से? ताकत लगा के. ओके फाइन. सो सबसे पहला, सबसे शुरुआत में, सबसे बेसिक, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स में दादी माँ, नानी माँ, अगर किसी को आपने देखा हो, है ना, और उनको अगर आपने देखा हो वो झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं वो? सो उसके आसपास की कुछ चीज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन आई विल बी हियर, लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, है ना. तो जब भी कोई भी चीज़ को अगर उठाना है, द फर्स्ट रूल ऑफ लिफ्टिंग इज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, राइट. सो जैसे कि अगर मुझे यहाँ से कोई भी चीज़, मैं मान कर चलता हूँ कि अगर मुझे ये पेन जो है इसे उठाना है, राइट. सो मेरा पोस्चर, मेरी पोजीशन क्या होगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि जिस पैर से मुझे वज़न देकर खड़ा होना है वो पैर आगे रहता है, एक पैर पीछे रहता है, और इस तरह से. तो दोनों घुटने बाहर होते हैं, दोनों बटक्स यानी कि हमारे जो बम्स है वो पीछे की ओर रहते हैं. अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, मेरा स्पाइन अगर मुझे स्ट्रेट रखना है तो क्या मेरे हाथ नीचे पहुँच पा रहे हैं? तो क्या किया जा सकता है? तो सिंपल है, यहाँ पर अगर मुझे वज़न उठाने के लिए झुकना पड़ेगा, बोले रवि सर इतना ही है, मैं थोड़ा ही झुक लेता हूँ तो हो जाएगा? नहीं. क्या होता है कि जब हम झुकते हैं इस तरह से, तो पूरा जो लोड होता है, उस चीज़ का जो वज़न होता है, वो एग्जैक्टली हमारे स्पाइन पर शिफ्ट हो जाता है, लोअर बैक पर. एंड दैट इज़ हाउ वी, हम लोग खड़े होते तब हम कंप्लेन करते हैं, यार बैक में बहुत दुखी हो, है ना. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे इस चीज़ को उठाना है, माई कीपिंग माई स्पाइन स्ट्रेट, मैं क्या करूँगा, मेरे बटक्स यानी कि जो बम्स वाला हिस्सा है वहाँ से मुझे पीछे बाहर की ओर जाना है. दैट इज़ हाउ द स्पाइन विल रिमेन स्ट्रेट. एंड इस तरह से मेरा गर्दन, चेहरा सीधा, एंड इस तरह से मैं इस चीज़ को उठा सकता हूँ. बीट यहाँ पे आप अगर इस बुक्स को भी उठाना चाहे तो इसी तरह से उठा सकते हैं. अब 2-3 वॉलंटियर्स आ जाए फटाफट. लेट्स सी हाउ वी लर्नड. आइए प्लीज़ प्लीज़.
आप दोबारा आना चाहे तो भी आ सकते हैं। स्टेज पे, स्टेज के नीचे सर। अच्छा आइए। So just so okay. So the first part here we need to understand is हमेशा उस ऑब्जेक्ट के एकदम करीब रहना है, राइट? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से इसे चेंज किया जाएगा, बट इस ऑब्जेक्ट के एकदम करीब रहना है। दूसरा जो पॉइंट आप सबने मिस किया वो क्या है? मेरे दोनों हाथ कहाँ थे? आपने क्या देखा? दोनों पैर के बीच में मेरे हाथ थे, राइट? अगर मैंने हाथ बाहर रखा है आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस। वापस एक बार करें सर। आपका नाम? नदीम सर वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां जी। सो आप ऑब्जेक्ट के थोड़े करीब बैठ सकते हैं जी, थोड़े और, थोड़े और, यस। अब जिस पैर, आप लेफ्टी है राइटी है? राइटी, तो लेफ्ट पैर आपका आगे रहेगा, राइट पैर हल्का सा पीछे रहेगा, एंड हम इस तरह से बैठेंगे, दो पैर खुले रहेंगे, राइट? और इस तरह से। अब हमें जब भी झुकना है तो हम क्या करेंगे सर? बटक्स वाले हिस्सा जो है उसे यहाँ से हम इस तरह से मूव करेंगे, एंड 1 2 3 4 जितनी भी बुक्स आपको लेनी है आप इसे हमेशा, जो नेक्स्ट रूल आता है इट इज कीप द ऑब्जेक्ट क्लोज टू योर बॉडी, राइट? तो बॉडी के पास रखते हुए इस तरह से हम इसे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर जी, आइए। सो ये आइडिया आई होप आपको क्लियर हुआ हो, हाँ या ना? गुड। बट व्हाट इफ दिस इज अबाउट द लिफ्ट्स, बट व्हाट अबाउट द शिफ्ट्स? मुझे अगर ये जो कार्टन है, राइट, इस कार्टन में मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे इसमें बहुत सारा वजन भरा पड़ा है, तो मैं इसके थ्रू या इसके ज़रिए किस तरह से मैं इसे उठा पाऊँगा? अगर मुझे इसे उठाना है तो मैं किस तरह से उठा पाऊँगा? एनीवन? जल्दी, आपको ख्याल है हाँ या ना? ओके गुड, यस सर प्लीज आइए। मान लेते, आपको जितना रखना है उतना रख लेते, बोलो सर। मैनुअल हैंडलिंग के अंदर सर मान लेते हैं कि इसका वजन कम है और दूसरा है कि इसका वजन ज़्यादा है, राइट? आपको कौन सा वाला प्रेफर है? जी आइए प्लीज। हाँ यो ओके। और अगर ये भारी है सर तो? थोड़ा ट्राई करना है कि अगर अपने से उठता है नहीं उठता है, राइट, ताकि दूसरे वर्षन को इसको कॉल करेगा 2/2। ओके फाइन, ठीक है, बैठिए सर। सो व्हेन इट कम्स टू लोड, है ना, खास करके पानी का जग 20 लीटर, राइट? मैंने देखा लोगों को वो सेम तरह से झुक कर उठाते हैं। इट इज कॉल्ड हाफ स्क्वाट लिफ्ट। क्या कहते हैं उसे? वापस एक बार जोर से बोले, हाफ स्क्वाट लिफ्ट, राइट? ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर या प्लांट के अंदर कोई चीज़, ऑफिस के अंदर जिस डेस्क के ऊपर आप बैठे हैं वहाँ पर काम करते हुए आपको लिफ्टिंग और शिफ्टिंग में हेल्प मिलेगा। ये घर पर भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, कहीं पर भी जाओ, है ना? दैट इज हाउ एंड दैट इज वाई इट इज ऑलवेज बियॉन्ड द मैंडेट कि सो हाफ स्क्वाट लिफ्ट इज ऑलवेज लाइक कि मेरा एक पैर पीछे रहता है, मैं इस तरह से एक पैर के ऊपर थोड़ा सा, जिस पैर के ऊपर मैं वजन ले सकता हूँ, इट्स अ लेफ्ट लेग, राइट? आई एम अ लेफ्टी। तो मैं इस तरह से इसको उठा के, अब मैं इसे दूर नहीं रख सकता, मैं इसे हमेशा पास रख के उठाकर आराम से मूव कर सकता हूँ, राइट? जैसे कि अगर ये बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर सेम तरह से सेम कंसेप्ट लागू होता है, लेकिन जैसे आपका नाम सर? दिग्विजय सर ने वॉलंटियर किया था, उनके लिए तालियां प्लीज। लेट्स एंकरेज वन थिंग। सो जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर इसका वजन ज़्यादा है तो मैं हमेशा दूसरे व्यक्ति की मदद लूँगा। अब अगर मेरे पास दूसरा व्यक्ति सामने है तो मैं कैसे बैठूंगा? ये कंसेप्ट वहाँ पर तो काम नहीं करेगा। मेरे सामने अगर ये बक्सा है तो मैं इस कंसेप्ट पे काम नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो ऐसे में द पोस्चर इज ऑलवेज लाइक, देखिए, दो पैर खुले रहेंगे, दोनों पैर ज़मीन को सटक के रहेंगे,
घुटने ऊपर रहेंगे, बटक्स नीचे रहेंगे, पूरे के पूरे स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। और स्पाइन स्ट्रेट रहने के बाद क्या होगा, दोनों हाथ की ग्रिप, हमेशा ग्रिप कभी भी बाहर से अंदर नहीं लेनी है, हमेशा यहाँ आप नीचे से ऊपर की ओर ग्रिप लेते हैं। जब भी हम उल्टा रिवर्स ग्रिप करते हैं क्या होता है दिक्कत, इसके छूट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। एंड ये सेंस जब भी ये ग्रिप लेते हैं दिखाते हैं आपको। सो देखिए ये पोस्चर होता है, ये पोस्चर में मैं बैठता हूँ एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, दोनों हाथ एंड इस तरह से। यहाँ पर मेरा स्पाइन स्ट्रेट रहता है और इस तरह से मैं इसे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए 1 2 3 की गिनती पर इजीली लिफ्ट कर सकता हूँ। एंड आखिरी पॉइंट कि अगर मान लेते हैं कि ये बक्सा मेरे पास यहाँ पे मैंने उठाया तब मेरे पास है, अभी इसका वज़न काफ़ी हल्का है, मुझे इसे शिफ्ट करना है, यानी कि मुझे इसे ऊपर की दिशा में कहीं पर भी रखना है। सो ये हमेशा 2 साइजेस या 2 तरह के शेप्स में आएगा। एक जैसे कि मैं अगर सामने से पकड़ रहा हूँ, राइट, और दूसरा होता है कि मैं इस तरह से पकड़ रहा हूँ। सो मेरे लेफ्ट और राइट पोजीशन दोनों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये पोजीशन में है जहाँ पर मेरा हाथ आराम से पहुँच पा रहा है, आई विल ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली क्लोज। दिख रहा है आपको, राइट। लेकिन अगर ये बहुत ही चौड़ा है और लंबा भी है, ऐसे केस के अंदर अगर फिर भी मेरे दोनों हाथ इसको टैकल कर सकते हैं, तो मैं किस तरह से इसे पकड़ूंगा, 1 and 2। जब भी मुझे इसे शिफ्ट करना है, लिफ्टिंग के बाद में जब भी शिफ्ट करना है, आई विल ऑलवेज होल्ड इट लाइक दिस। यहाँ से ये जो हमारा वज़न लेने वाला शोल्डर है वो शोल्डर के करीब में जाता है एंड देन ग्रेजुअली इसे ऊपर धकेला जाता है। ऊपर हम हमेशा इसे क्रॉस में या परपेंडिकुलर रखते हैं और उसके बाद में दोनों जो नीचे वाले हिस्से हैं वहाँ से इसे पुश करते हैं। So with this, I hope you have learned something new today, which is not mentioned, but it is still the part of the safety. It is definitely beyond the mandate. इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है या कितने लोग 4 व्हीलर में ट्रैवल करते हैं, हाथ उठाए। सो अर्गोनॉमिकली जब भी हमें हाथ उठाना है, वी ऑलवेज लाइक, गुजराती में एक कहावत है कि अर्धी काठी ध्वज ना फर्क है, राइट। सो हमेशा यस, वंस अगेन, कितने लोग 4 व्हीलर में ट्रैवल करते हैं, गुड, यही हाथ ऊपर रखिए प्लीज़। कितने लोग ड्राइवर सीट पे या फिर बाजू वाली सीट पर बैठ के सीट बेल्ट पहनते हैं, गुड, अगेन कीप द हैंड्स अप। आई वुड लाइक टू सी कि पीछे पैसेंजर सीट पर कितने लोग बैठते हैं और उस वक्त वो लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। मैं तो पहनता हूँ। वी हैव 3 4, गुड, ओके फाइन। अच्छा, सो अ वेरी ट्विस्टेड फैक्ट कि पुलिस वाला पकड़ रहा है इसीलिए मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, बल्कि मुझे मेरा सर बचाना है इसीलिए मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, राइट। पॉइंट हियर इज, एक छोटा सा कार का और एक चीज़ है जो मैं जस्ट बताना चाहूँगा आपको। द हेडरेस्ट, वी नो दैट, हाँ या ना, ओके। हेडरेस्ट कितने लोगों ने गाड़ियों में देखा है जिसको कवर से ढक लिया जाता है। लोग गाड़ी में जो सीट का कवर होता है उसके अंदर, पूरा कवर के अंदर ही आ जाता है अब तो, मतलब पहले पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ देखोगे। सो देखा है आपने ऐसा, है ना। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हेडरेस्ट अलग से होता है, क्यों होता है, एनी रीज़न, ब्रेक द ग्लास, गुड, तोड़ने फोड़ने की बात होगी। और यस, आप कुछ कह रहे थे सर। बहुत सही बात है सर, गुड, यस, हेड रिस्ट्रेनर। आपका नाम सर? केतन सर। केतन सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो हेड रिस्ट्रेनर जो है, इसका मेन मूल पर्पस, जैसे कि मैम ने बताया, मैम का नाम बहुत अच्छा नाम है। तो जागृति मैम के लिए तालियां हो जाए। सी, it is mainly there for 2 purposes. One is rightly mentioned, the another one is to prevent our neck from the whiplash injury, है ना।
मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या रोड सेफ्टी नहीं सिखा रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर को मैं जब मिला तब बता ही रहा था कि फोर व्हीलर अगर है तो फोर व्हीलर के अंदर बैठने का, बाहर कैसे निकला जाता है, अंदर कैसे बैठा जाता है, उसका एक तरीका होता है जो कि व्हीकुलर सेफ्टी। नाउ दिस टर्म व्हीकुलर सेफ्टी, इट इज़ पार्ट ऑफ ergonomics, व्हीकल ergonomics, है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड स्ट्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बट इट इज स्टिल बियॉन्ड द मैंडेट। विप्लैश इंजरी मतलब कि हमारा जो सर्वाइकल है, ये है ना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी मेंटेन होती है, चलती रहती है ना, हाथ पैर का हिलना वगैरह सब चीज़ें। तो मुख्य बात यहाँ पे ये है कि इस वजह से हेडरेस्ट, सर ने बहुत खूबसूरत बात बताई कि मेरी हाइट के हिसाब से उसे एडजस्ट करना होता है और उस हिसाब से मैं अपने आप को एब्सोल्युटली सेफ रख सकता हूँ। That is why it is a choice always to make. अब इन सब चीज़ों के अंदर मैंने आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आज, आई एम होपिंग द बेस्ट कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि बियॉन्ड द मैंडेट है। अब सेफ्टी ट्रेनिंग जिसके अंदर बियॉन्ड द मैंडेट एक हल्का सा रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर हम थोड़ा देखते हैं स्लाइड्स। तो सेफ्टी, मुझे ये डेफिनेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत ही पसंद आई। इन्होंने एक वर्कर का वेल बीइंग को ध्यान में रखा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, बट इन्होंने क्या लिखा है, डिफाइन सेफ्टी एज पार्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव अप्रोच टू एंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स, राइट। इट इज़ नॉट ओनली वन कि नहीं इनका हाथ, इनका हार्ट या इनका रेस्पिरेटरी यही ठीक चलना चाहिए, इट इज़ ऑलवेज अबाउट वेल बीइंग। Training, we all know it is teaching a person particular skill or behavior, लेकिन इन सब के अंदर हम कहीं पर एक जगह पर अगर है तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टेकिंग 30 सेकेंड फ्रॉम यू, आपको क्या लगता है सेफ्टी एज अ स्किल इज रिक्वायर्ड, स्किल इज बेसिकली नॉलेज, सेफ्टी एज अ बिहेवियर इज रिक्वायर्ड और सेफ्टी एज अ कल्चर इज रिक्वायर्ड? व्हाट डू यू थिंक? कल्चर, बहुत अच्छी बात है। कल्चर क्यों, इफ आई मे आस्क? सर इज लाइक तुम, आप बोलने आए हैं, आप पूछ कर रहे हैं कब से। बहुत सही बात है सर। मेरे दोस्त, आपका नाम सर? मीत सर के लिए तालियां हो जाए, राइट। देखिए यहाँ आगे जो कल्चर है, जो नेसेसिटी है, उसको बहुत ही बखूबी उसको समझाया हुआ है कि अगर स्किल है तो वो नॉलेज है, नॉलेज के अंदर देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ एनहांसमेंट। जहाँ पर ये बिहेवियर है कि एक प्रैक्टिस के अंदर है, राइट, बट हमेशा वो एक इंडस्ट्री या एक कंपनी को अपने मूलभूत रूप से ऊपर उठाकर अगर रख पाएगा तो वो तभी हो पाएगा जब वो उसके फाउंडेशन में होगा। फाउंडेशन का सबसे महत्वपूर्ण दो मुद्दे कि ये एक माइंडसेट, वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इन सबको मिलाकर होता है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति, मैं सेफ्टी इंजीनियर नहीं हूँ तो मैं ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर सबसे खूबसूरत चीज़ है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज, ये एक ऐसे लोगों का झुंड है जहाँ जो हर व्यक्ति समझता है दैट इट इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज़ वेयर द सेफ्टी एज कल्चर कम्स अप, राइट। अगर सेफ्टी एज कल्चर इम्बाइब करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग रूटीन में सेफ्टी ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करते हैं उसके अंदर नीड असेसमेंट, बट यहाँ पे जो मेंशन्ड है दैट इज़ हाउ द ट्री इज़ बीन शोन दैट इट इज़ अ यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस यूनिक हैज़ अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर व्हीकुलर ergonomic का ट्रेनिंग होता है, राइट, सो कार और उसके ड्राइवर के लिए एक अलग सेट ऑफ ट्रेनिंग होता है। जो उस कार के अंदर या उस व्हीकल के अंदर से जो मटेरियल निकाल रहा है व्यक्ति, आप डेफिनेटली फॉर्क लिफ्ट यूज़ करना जानते हैं, बट उसके अलावा जो मैनुअल हैंडलिंग होता है मटेरियल का, उसके अंदर जो काम लगता है वो होता है मटेरियल हैंडलिंग, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको अभी दिखाया। सो मटेरियल हैंडलिंग और इसके अलावा हायर एंड अपर मैनेजमेंट, तो इनके लिए भी डेडिकेटेड ट्रेनिंग्स होते हैं जहाँ पर ये फुल डिटेल में इनको यूनिक वेज सिखाई और समझाई जाती है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर इज, ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब क्या?
टेकअवेज एज इन की व्हाट दे शुड नो. द बेस्ट पार्ट वी ऑलवेज टीच, वी ऑलवेज टॉक इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू, है ना. ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इनके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हमेशा के लिए होना ये बहुत ज़रूरी है. एंगेजिंग डिलीवरी मेथड्स, आई हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ मैनी प्रोग्राम्स एंड आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्लाइड. जैसे कि आप भी समझ पा रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ. एंगेजिंग डिलीवरी मेथड्स आर द नीड ऑफ द आवर. इन सब के पीछे ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है. इफ़ यू अंडरस्टैंड पोस्ट ट्रेनिंग रीएंफोर्समेंट क्यों ज़रूरी होता है, अभी मैं फ़िलहाल आपको नहीं पूछूंगा, थोड़ा जल्दी. बट रिफ्रेशर मॉड्यूल्स डेफिनेटली दे वर्क, बट मेन पार्ट विजुअल रिमाइंडर्स, राइट. विजुअल रिमाइंडर के अलावा एक छोटी सी चीज़ है जो कि आगे एक नए ट्रेंड सेटर के अंदर काम कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि ये जो रिकॉल परसेंटेज है, ये जो ग्राफ है, ये नीचे, ये कर्व जो है ये नीचे ना जाए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज नीडेड. एब्सोल्यूट ट्रुथ, हर एक बिजनेस का खुद का जो एबिलिटी कि अगर कोई क्राइसिस हुआ उसके बाद भी वो अपने एसेंशियल्स को फंक्शन कैसे कर पाए, तो इसके लिए ये लिंक हमेशा होना बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन यहाँ पे अगर एक कल्चरल लेवल पर, कल्चर लेवल के ऊपर अगर इनके प्लांट या बिजनेस के अंदर अगर सेफ्टी इम्बाइब्ड है, तो ये नौबत आने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं. लेट्स सी टेक्निकली क्या होता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल है तो वहाँ पर हायर सिक्योरिटी डेफिनेटली होती है. इसके अलावा इम्प्रूव्ड रिस्क अवेयरनेस जो कि डिसरप्शंस कम करते हैं, और ट्रेनिंग मतलब ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स और ट्रेन मेंबर्स ऑन साइट ये फास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए काम करते हैं. एंड दैट इज़ हाउ द लेस डाउन टाइम कम्स इन अ प्लेस. ट्रेंड्स के ऊपर विल टेक लास्ट 5 मिनट्स. कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. द फर्स्ट आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट दीक्षित सर. एक्चुअली दीक्षित सर AMA में आए उसके बाद अगर आप रेगुलर कनेक्टेड है तो आपको ख्याल होगा कि ऑनलाइन एंड ई लर्निंग्स, वर्चुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए, राइट. मैं दीक्षित सर के साथ एंड AMA के साथ मैं खास करके 2016 से जुड़ा हुआ हूँ. डायरेक्टर सर उससे भी पहले जुड़े हुए हैं, बट मेरे लिए भी बहुत नया था कोविड के बाद. एंड ही इज़ लाइक डेफिनेटली विल वर्क दिस आउट. सो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो ई लर्निंग मॉड्यूल पर अवेलेबल होते हैं. ई लर्निंग मॉड्यूल जो है उसका खास बेनिफिट ये है, थैंक्स टू AI, द 3D मॉड्यूल्स. रिसेंटली वी हैव बीन टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. अब आयुर्वेद के अंदर AI का इस्तेमाल करके ह्यूमन बॉडी जो इंसेक्ट किया जाता है, वो इंसेक्शन के लिए दे डोंट रिक्वायर अ बॉडी एनी मोर. दे हैव अ फुल फ्लेज AI मॉड्यूल जहाँ पर जस्ट they need to, the student need to zoom in and then get to the stem cell. They'll understand कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, सब चीज़ें वहाँ पे. सो ई लर्निंग पार्टिसिपेंट अपने खुद के समय के हिसाब से ये कर सकता है. जब उसको किसी से सलाह मशवरा लेना है वो ले सकता है. देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म अवेलेबल. सो येस, इट इज़ इन ट्रेंडिंग. द सेकेंड पार्ट, येस, इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल. हम लोग काफ़ी सारे सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन में जाते हैं एंड वी सी दिस. द गेमिफिकेशन इज़ ऑन राइज बहुत अच्छी तरह से, खास करके स्पॉट डे हज़ार्ड से लेकर रोल प्ले, सेफ्टी किट, स्किट्स, पीपी रिले रेस एंड ख़ास करके इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन गेम्स, ये सब चीज़ें हमेशा अब देखने को मिलती है. दे लिटरली हायर गेम जॉकीज़ कि जहाँ पर वो लोगों को आराम से इन्वॉल्व करके ये प्रोग्राम के अंदर रख पाए. वर्चुअल रियलिटी, एनी ऑफ यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस? पिछले 4-5 सालों के अंदर सिमुलेशन ट्रेनिंग्स काफ़ी राइज पर है.
किसी ने यस जस सर Some of us are principals in this group, जी and you are constantly addressing the people who are from industry. जी So, at what extent is it possible or useful to the students for principals? Will you please explain? For sure, sir. So that is where the topic actually comes into picture. Safety beyond the mandate, sir. That is what exactly we have been I have been performing. The people who came to volunteer, they have been performing and demonstrating the basics कि कैसे उठना बैठना है, किस तरह से आप एक चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं. ये ऐसी बेसिक्स है जो कि बियॉन्ड द मैंडेट है. ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है सर. ये सेगमेंट के अंदर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल को उनके प्रॉब्लम्स को असेस करके ट्रेन किया जा सकता है. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. आई जस्ट हैव सर वन स्लाइड लेफ्ट, सो इफ आई मे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल who approached and who has requested कि हम जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, हमारा काम डेस्क जॉब है, तो आप इसमें हमें कुछ चीज़ों को लेकर एक प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे. तो उसके लिए ऑफिस अर्गोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया. ये प्रोग्राम जो है इसके लिए ऐसे नहीं कि आपके यहाँ पे सीधा आके ट्रेनिंग कर लिए, बट देयर इज़ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट जो साइट विज़िट करती है. हर व्यक्ति जो कि वो टीम का मतलब वो ग्रुप का हिस्सा होने वाला था, जिनको ट्रेनिंग मिलने वाली थी, उनका पूरा डेस्क का डिज़ाइन देखा गया, उनके मेजरमेंट्स लिए गए और उनको एक सेल्फ स्टडी डॉक्यूमेंट दिया गया कि आप इन चीज़ों को आप भर के आइए. इसके बाद इनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग किया गया, जहाँ पर इट वाज एड्रेसिंग देयर मेनी हेल्थ इश्यूज़ एंड हेल्थ हज़ार्ड्स. जैसे कि इन्हें विजन में इश्यूज़ है, इन्हें बैक पेन में, इन्हें शोल्डर मूवमेंट में इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको एंकल मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को एड्रेस किया गया. सो दैट इज़ द कोर ऑफ दिस एंटायर. मेरा लास्ट स्लाइड है जो विच प्रोबेबली विल एड्रेस योर क्वेश्चन सर. इफ़ आई मे गो अहेड. वर्चुअल रियलिटी इज़ जस्ट ऑन द राइज, जहाँ पर सिमुलेशन एंड सिमुलेशन के साथ में देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ एक्सटेंसिवली प्रोग्रेसिंग. इट इज़ कि जब भी काफ़ी सारी कंपनीज इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कोई एक रिमोट लोकेशन के अंदर कोई प्लांट है, तो विद द यूज़ ऑफ VR इन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इनके ट्रबल शूट किए जा रहे हैं. माइक्रो लर्निंग, मैंने आगे एक स्लाइड में आपको बताया था कि अगर ट्रेनिंग हो जाती है या ट्रेनिंग के बाद में एक और चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड माइक्रो लर्निंग. माइक्रो लर्निंग इज़ नाउ absolutely considered as best training module और a training methodology, जिसे हम हर फील्ड के अंदर इससे सीख सकते हैं. बेसिकली ये 5 से 10 मिनट एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है. ये टॉपिक को काफ़ी सारे टुकड़ों में बांटा जाता है और उनके एक एक सेगमेंट को उठा के सिर्फ 5 से 10 मिनट का ट्रेनिंग किया जाता है, जो कि लोगों की याददाश्त में रहने के मतलब उनकी याद शक्ति में रहने के इम्बाइब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है. सो माइक्रो लर्निंग इज़ वन ऑफ द की. एंड लास्ट, इट इज़ डेडिकेटेड टू इंडस्ट्री. डेफिनेटली इट इज़ डेडिकेटेड टू इंडस्ट्री, बट टू ऑल इंडस्ट्री. जहाँ पर सेफ्टी मैटर करता है, इन सब लोगों के लिए ये मायने रखता है कि EHS सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन ये किस तरह से काम करता है. इट गिव्स सेंट्रलाइज डेटा ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रैक करता है पूरा डेटा. ऑटोमेटेड शेड्यूल्ड रिमाइंडर्स, ये जो भी वेबएक्स वगैरह पर अगर आप ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि रेगुलर रिमाइंडर्स वगैरह आते हैं. ऑटोमेटेड वो शेड्यूल करने के अलावा रियल टाइम डैशबोर्ड और एनालिसिस पूरा डेटा का वो करके देता है. एंड वर्क परमिट एंड एक्सेस कंट्रोल के साथ में ये ईजिली काम करता है, जहाँ पर परमिशन इज जस्ट ऑन द क्लिक. Where the last slide says safety as a culture, अगर हमें build करना है into any industry, be it safe, be it a industry, be it a school or be it a office or a corporate, हर जगह पर कहीं पर भी अगर safety as a culture
जिसके बारे में हमने बात की, अगर ये हमें करना है तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट हैज़ दिस मैनी कंपोनेंट्स. It starts with training, it goes to safety rules and procedures, teamwork, the most integral part of it, safety communication. This is where the micro training part comes into picture. Workforce involvement, reporting systems, organizational learnings, and the most important part again, management commitments. So, that's all about me. That's all about the safety training, but mainly focusing and targeting on beyond the mandate. Thank you all. Dot on time. Excuse me? Yeah. Yeah, we can have a few questions. You can sit here. There is a mic given. Yes. I think it's your mobile. Thank you, sir. Yes, sir. I didn't have a question. I just wanted to see the slide. Okay. Any other question? You ask a question. It is fine. You can interact with him later also. After the session is over, you can interact with him. Okay. So if you want to have more understanding about it. Sir, I would like to ask a question regarding capability of individual to lift an object from ground. How one can decide? Is there any methodology? So definitely हर इंडिविजुअल को खुद का जो कैपेसिटी है वो देखिए इंक्रीज करना डिक्रीज करना ये 2 नंबर का बात होता है, बट हर एक व्यक्ति ये खुद पॉस्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड करेगी कि कौन से पॉस्चर में आपको हल्का सा भी बैक पेन है या ऐसा कोई भी हिस्ट्री अगर आपको है, फॉर एग्जांपल कि मैंने पिछली बार एक नीचे से एक चीज़ को उठाया था एंड मुझे दुख गया था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, है ना, तो वो व्यक्ति हमेशा एक तरह से थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हिचकिचाहट में आ सकता है, बट पॉस्चर ऑलवेज गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का खुद का एक लिमिट या कैपेसिटी होता है मटेरियल को लिफ्ट करने का, तो उन्हें उन चीज़ के अंदर खुद को पहले ट्रेन करना पड़ता है, राइट पॉस्चर्स समझने पड़ते हैं. जैसे कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल इफ़ यू हैव सीन, मैं जिस तरह का वज़न उठा रहा था या जिस तरह की चीज़ को ले रहा था, मेरा राइट या लेफ़्ट लेग खुद ब खुद उस तरह से आगे या पीछे कर रहा था, राइट. मैं अगर किसी बड़ी सी चीज़ को अगर उठा रहा हूँ तो मेरा जो बॉडी है वो खुद ही उस तरह से ढल गया है, इट इज़ इम्बाइब्ड एब्सोल्युटली. तो इस तरह से ये एक प्रोसेस के थ्रू द पर्सन डेफिनेटली कैन गेट टू नो एंड गेट टू वर्क कि वो कितना मटेरियल कितनी दूर तक उठाकर रख सकता है या जा सकता है. Please give the feedback form, because we always look forward to your feedback. AMA is doing very well, but we like to be always doing very well and maybe better, right? Your feedback is very valuable for us. Fine, I think that's good enough. Once again, thank you very much, Mr. Ravi, for it's a great learning experience for everybody, including me. Let's have a round of applause for him. And he has already given his contact details. I am happy about that. So, because he is in that field, he is sharing his knowledge practically. So, he will always welcome, I am sure, that whatever questions are that. And we need such kind of people to be safer and better. Thank you. Thank you all. Keep coming to Ahmedabad Management Association, right?